So you can sort of predict the future. I would say something and it would come true to life. Governments जो हैं और agencies जो हैं, they do come after people like us. Have they come after you? I don't know. ISI was using these people to get what they wanted out of the ये आप politicians. मुझे फंसाने वाले काम कर रहे हैं। कि बचपन में कुछ कहा और सच हो गया. I remember I saw this dream, blast वगैरह देखा कि इस तरह की बिल्डिंग है, blast हुआ है कि अब next क्या होने वाला है, who's going to attack who, earthquake कब आने वाला है, floods कब आने वाले हैं. These are things where you help everyone, or is this a sort of a business transaction? मैंने day one से I took it as a profession. लेकिन अल्लाह मियाँ की तरफ से आ रही थी वही, तो फिर आप चार्ज क्यों कर रही है? अल्लाह मियाँ ने आपको गिफ्ट दिया. अल्लाह ने मुझे, आप ये बताएं ना, अल्लाह ने ये कहाँ हुक्म दिया है कि if somebody is with abilities, तो वो इसके जरिए they cannot make a living out of it. पाकिस्तान अगले 5 साल में एक वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं जीतेगा? Will Pakistan and India go to war again in the next 5 years? Yes. Will Imran Khan ever become prime minister again? Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very interesting guest joining us today. Alizé Revan is a clairvoyant. Did I pronounce the other word correctly? Clairvoyant? It's clairvoyant. Clairvoyant. Yeah. Okay. First, can you tell me what that means? Like, as a layman, what does that mean? Clairvoyant are people who can basically tap into other people's energy and they can tap into other dimensions. And we can basically get to know about the past, present, and what's to come. So you can sort of predict the future? Yes. Okay. Can you read minds as well? Or is it just like you predict the future? I am also a mentalist. So वो एक अलग category होती है. Clairvoyants अलग होते हैं. Mentalists अलग होते हैं. So I'm also a mentalist. I'm a mind reader as well. Mentalist क्या करते हैं? Mentalist दिमाग पढ़ते हैं. आपके subconscious mind में क्या चल रहा है? आप का thought process क्या चल रहा है? Mentalists do that basically. Okay, so Alizé, then I'm thought of a number. I've written it down here between 1 and 10. Can you tell me what it is? Okay, so मैं जिस तरह की वो करती हूँ mind reading, वो current उस moment की यूं नहीं होती है कि आप उस वक्त क्या exact सोच रहे हैं. Basically, I'm going to tell you कि आजकल आपका thought process क्या चल रहा है. आजकल आपके दिमाग में क्या चल रहा है overall. So that's what I read basically. Okay, so it's more like feelings. It's not like you can tell me exactly कि अगर मैं बोलूं कि I've thought of a color. You can't like tell me what the color is. No, I don't read that. I don't. Okay. So then tell me like how is it? Is it like psychology? Are you reading my body language? Are you reading like things like something under my eyes कि नजर आ रहा है कि मैं सो नहीं रहा? Like what are you reading when you're doing the mentalist stuff? अच्छा, so basically these are inborn abilities. Okay. ये बाय बर्थ कुदरती तौर पे मिली हुई हैं. इसमें मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है. इसमें ये नहीं है कि मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड कर रही हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है. व्हाट हैपेंस इज कि पूरी की जर्नी होती है आपकी एंड आहिस्ता आहिस्ता करके ये एबिलिटीज एनहांस होती हैं. If you have heard about premonitions. No. What are premonitions? आपने वो मूवी देखी Final Destination? Yes. The one with the roller coaster. I think that was like 3. I've seen a couple, yeah. Yeah, so उसमें जो है वो मूवी की तरह चीजें आ रही होती हैं. People are getting visions. Mm-hmm. So basically that's what happens कि visions आ जाते हैं. Clear audio basically कहते हैं हम लोगों को. हमें सुनाई दे देती हैं चीजें. जो सेंसरी एबिलिटीज होती हैं ना इंसान की, वो बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड होती हैं. सो अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा, जिसको हम छठी हिस्स भी कहते हैं लोगों में, अल्लाह ताला ने सब में दी हुई हैं. द ओनली डिफरेंस इज के किसी को बहुत ही ज्यादा एनहांस करके दे दी हैं, किसी को एबिलिटी दे दी है कि वो ओवर द इयर्स इस चीज को एनहांस कर लें प्रैक्टिस करके. विद मी आई डिडंट प्रैक्टिस, आई डिडंट डू एनीथिंग एट ऑल. आई वाज जस्ट गिफ्टेड. And when did you realize that you were gifted? Like, how old were you? How does one go like, I have these, powers? So it started बचपन में ही काफी. मतलब मुझे आहिस्ता आहिस्ता पहले ख्वाब आने शुरू हुए, वो सच हो जाते थे. I would say something and it would come true to life. फिर उसके बाद Can you give me an example? आहिस्ता आहिस्ता कि बचपन में कुछ कहा और सच हो गया. I remember I saw this dream and वो कोई मैंने ब्लास्ट वगैरह देखा कि इस तरह की बिल्डिंग है, ब्लास्ट हुआ है
And in the morning I went to my mother's room and I said कि अम्मी आपको पता है कि मैंने ना इस तरह का ख्वाब देखा, and I was very shaken, मतलब वो देख के I didn't wake up on the right side of bed. And मैंने, as I was talking to my mother, I remember my dad walked into the room and he said टीवी लगाएं, आपको पता है blast हो गया कहीं पे. And it was the exact description of what I had just told my mother. So that happened. And eventually इसी तरह छोटी छोटी चीजें होती थी, but वो इतना noticeable नहीं होती थी, because obviously बचपन में आपका दिमाग जाता भी नहीं है कि ये क्या है. But then eventually I realized कि okay, I don't think I'm a regular kid. There's something different about me. So I started doing a lot of research online and I started to work on it कि अच्छा ये क्या चीज है, मैं पता लगाऊं. So that is when I got to know about all of these terms. And eventually फिर I noticed कि मैं लोगों को, I would look at people and I would just get that feeling of knowing things about them. So मैं उनसे जब confirm करती थी anything, from a couple of years ago, something very significant about their life, तो वो आगे से they'd be shocked कि अच्छा how do you know this? और कभी ऐसे हुआ कि यू वर लाइक So कंप्लीटली रॉन्ग अबाउट समवन, मतलब आपने किसी को एक चीज बता दी. आई मीन लुक, इट्स if it's intuitive, it's just coming to you, you don't 100% know if it's true or not, right? ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी को इन्फॉर्मेशन दी, वो सच नहीं हुई, या something that went badly? अच्छा, as much as I'm a firm believer of this, कि obviously मेरा इसमें अपना कोई कमाल है नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है कुदरती तौर पे आ रही है. Surprisingly, I've always been very accurate, for some odd reason. लोगों के बारे में specifically मैं कभी गलत नहीं हुई हूँ. It has always been quite accurate, very spot on, जो भी reading होती है. But yes, when it comes to predictions, तो I think जो मैंने predictions की हैं उसमें भी ये हुआ है कि जैसे एक दो जो हैं वो अभी तक हुई नहीं, गलत नहीं हुई, but अभी तक हुई नहीं. They didn't come into picture till now. But I firmly believe कि गलत मैं हो सकती हूँ कभी भी, of course. और do like are they vague or are they like more specific? Like मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को जो प्रोडिक्शन देखती हैं, एक तो चलें लाइक फॉर एग्जांपल बॉम्ब ब्लास्ट, राइट? अगर आप किसी के बारे में बात करती, बिकॉज आई नोटिस्ड अ लॉट ऑफ द टाइम्स, अब अगेन मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन द पीपल दैट आई नो अराउंड मी हु व्हेन दे गो सी समवन, दे यूजुअली गो सी समवन एंड दे आस्क अबाउट their love life. They ask about कि यार G20s में मेरा tough time गुजर रहा है. Isn't that everybody breaks up, everybody in their 20s is going through a rough time. I'm not saying that this is not true, I'm just No, I completely agree with you. I mean, if someone says कि आपके करीब कोई था और अब वो करीब नहीं है, vaguely speaking, that can be a lot of people. You know what I mean? It could be a loved one, it could be a girlfriend, it could be something else. Like, how do I know, like, what the level of that is? And when you tell people this, for example, why is it or why do you think it is कि बहुत सारे लोग जब पहली बात एक माइंड रीडर के बारे में सुनते हैं या एक somebody who has visions के बारे में सुनते हैं, दे आर नॉट आस्किंग हाउ टू मेक मनी, दे आर नॉट आस्किंग कि किस तरीके से मैं पत्नी आई डोंट नो दुनिया काबू कर लूँ. दे समहाउ गो इनटू द वेरी सिंपल थिंग्स के क्या मेरी शादी होगी, क्या मेरा पहला बच्चा बेटा होगा. व्हाई डू पाकिस्तानीज एंड इंडियंस फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन? अच्छा, पहले जो आपने पहला सवाल किया मैं उसका जवाब दे देती हूँ. सो इन माय केस, एक तो मैं लोगों से मिलती ही नहीं हूँ इन पर्सन. मैं ऑल ऑफ माय सेशंस दैट आई कंडक्ट दे आर ऑडियो बेस्ड. मैं सिर्फ फोन पे बात करती हूँ. सेकेंडली, ये एक कल्चरल आई थिंक वो रहा है, एक प्रैक्टिस रही है, एक वैसे भी आई थिंक जो हीलर्स हैं या एनर्जी वर्कर्स हैं, ज्यादातर मैंने देखा है वो आपका नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे. मैं इनमें से कोई भी चीज नहीं करती हूँ. मैं सिर्फ आवाज की बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन लोगों की बताती हूँ. दैट्स कमिंग टू मी. तीसरा ये कि मैं बहुत स्पेसिफिक्स, बहुत निटिग्रिटीज बता देती हूँ, जिससे लोग बहुत जल्दी फिर ऑब्वियसली रेजोनेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी मच एबल टू टेल द एंटायर कॉन्वर्सेशन दैट हैज प्रॉबेबली टेकन प्लेस बिटवीन टू पीपल. सो मैं वर्ड टू वर्ड वो बता देती हूँ. कभी आई कैन टेल व्हाट समबडीज स्पेसिफिक कंफर्ट फूड और फेवरेट फूड इज. कभी कभी इतना बेसिक भी मैंने इतना उसमें जाके भी बताया इन डेप्थ कि अगर कोई क्लेंच करता है, if somebody has a habit of clenching their teeth, so whether it is vertical clenching or horizontal clenching,
So that kind of details I can give. I can also tell about another person's personality. For example, अगर आप मुझे कहते हैं कि मेरा भाई है, so what about him? I'd be able to tell you exactly what's happening in their life. I'd be able to tell you exactly what kind of personality do they have. So yeah. So इसलिए लोगों को लगता है कि it's quite accurate. लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती. And how do these people contact you? Did they reach out via like social media or is it word of mouth? I'm only on Instagram. मैंने 1.5 साल पहले काम शुरू किया था. It's been a year and a half, but word of mouth के through, because majority of my predictions they've come true. मेरी hardly कोई prediction ऐसी रही है जो ना सही हो. I'm also a global and a universal seer. So मैं global level पे भी predictions करती हूँ, मैं universal level पे भी करती हूँ. So even जो NASA related भी होती हैं, वो पहले मैं बताती हूँ, फिर बाद में NASA बता रहा होता है. So, Global seer क्या होता है? Can you explain that to me? for example, आपकी जैसे war situation चल रही है. So I am a remote viewer. I also do astral projection. So मैं movements बता देती हूँ कि अब next क्या होने वाला है, who's going to attack who's going to do what. या मैं I can tell you about earthquake कब आने वाला है, floods कब आने वाले हैं, किस region में क्या होने वाला है. So in fact, अभी I think 6 महीने पहले की बात है. I mentioned it on my story that I can hear an earthquake coming. I do hear the crust moving. And within an hour, I got about 100 messages from people from Islamabad only. कि लीजे earthquake आ गया यहाँ पे बड़ा बुरा. तो फिर आप बता दें जंग कब खत्म हो रही है? Because I need to go to Dubai. September तक don't be very hopeful, ये इस तरह चलेगा. मतलब आप कह रही है जो अगले हफ्ते इस्लामाबाद टॉक्स हो रहा है ये सब नॉनसेंस है, ये तो नहीं होता वापस. थोड़ी देर का आपको लगेगा कि अच्छा थोड़ी बेहतरी आ रही है, but then again there's going to be threat, situation is going to be volatile. ये इनका चलता रहेगा अभी. वो नहीं होती कैट फाइट हो रही होती है, थोड़ा तुम अटैक करो, थोड़ा हम करें. It's going to be like that. और सितंबर में क्या होगा? सितंबर तक ये होगा, एंड सितंबर ऑनवर्ड्स फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगी. Not before September. अच्छा, back to what we were discussing. Just a weird question. Again, I told you it's going to be a bunch of weird questions because I'm curious. Can you see your own future? No, I can't. So like, can you, matlab, no, whatever, but like your family, people around you, matlab, it must be, if you can actually see what's going on there, isn't it like irritating for them or for you कि आपको पता है कि यार ओ नहीं ये तो इसके साथ तो बहुत बुरा है, इसकी तो जॉब चली जाएगी. देखिए, what I believe is, पहली चीज तो ये कि आप मेरे जैसे किसी भी इंसान से मिलेंगे जिनके पास ये एबिलिटीज हैं, we can never do anything for ourselves. और मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए रखा भी इसी तरह है, बिकॉज देन अदरवाइज आई पर्सनली थिंक वीड बी वेरी सेल्फिश. फिर हम लोगों के काम आना छोड़ देंगे, हम पहले अपनी जिंदगी को फिक्स करने में इतना लग जाएंगे कि आई डोंट थिंक कि हमारे पास पर टाइम रहेगा कि हम दूसरों के बारे में सोचें, जो मुझे लगता है. सो एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज मुझे ये भी लगता है कि ताकि ज्यादा इट डजंट गेट टू आवर हेड्स ना. आप मतलब अगर आप अपनी लाइफ के लिए सब कुछ कर सकते हैं, आपकी कोई परेशानी नहीं है, आप बिल्कुल जिंदगी में खुश चल रहे हैं, तो फिर खुदा को आप कब याद करेंगे. तो मुझे पर्सनली ये लगता है दैट्स वन रीजन व्हाई गॉड नेवर गिव दिस थिंग फॉर अस. दूसरा ये आपने पूछा कि जो आसपास के लोग हैं वो इरिटेट होते हैं या नहीं. आई पर्सनली फील इट्स इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये नहीं है कि आपको बहुत कूल बनना है, आपको फ्लेक्स करना है, आप बस शो ऑफ करें कि जी आई एम अ सुपर ह्यूमन. मुझे लगता है कि यू हैव टू बी वेरी वाइज विद व्हाट यू हैव. आपको बहुत दानाई के साथ, बहुत समझदारी के साथ इन चीजों को यूज करना चाहिए. ये नहीं कि आप चलते फिरते बस हर वक्त चीजें प्रोडिक्ट कर रहे हैं और आप हर वक्त हर एक को हर चीज बता रहे हैं. आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट और कीपिंग ऑल ऑफ दिस इज कि आपको वो एक फाइन लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए कि कहाँ पे आपको एक रेगुलर ह्यूमन की तरह जिंदगी गुजारनी है और कहाँ पे आपको यू हैव टू कम आउट विद व्हाटएवर यू आर सेंसिंग. सो इवन इफ आई एम सेंसिंग एनीथिंग, मैं चुप रहती हूँ. आप कभी कभार नहीं आई बताती? डोंट ऑलवेज स्पीक अप. Do you ever not tell someone So something you see? basically, so suppose regular, चलते फिरते मुझे कुछ चीजें अगर फील हो रही हैं and there are people around me,
तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको चलते फिरते बताती रहूं अच्छा मुझे ये फील हो रहा है, ये फील हो रहा है। बिकॉज देखें, पर्पस ये नहीं है, वही मैं कह रही हूँ, पर्पस ये नहीं है कि मुझे लोगों को सिर्फ फ्लेक्स करना है कि देखो मुझे तो ये पता चल गया तुम्हारे बारे में। देयर इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कम्स विद इट। मुझे ये चीज करोड़ बार सोचनी होती है कि क्या मेरी कोई चीज बताने से अगले इंसान को फायदा होगा, क्या मैं उनके लिए कोई जरिया बन रही हूँ बेहतरी का या नहीं। अगर मैं उसमें से कुछ भी नहीं कर रही हूँ तो आई थिंक बेस्ट इज के वाइज ये है कि मैं चुप कैसे रहूं। इसमें खामोशी आपको कितनी इख्तियार करनी है, कब करनी है, आई थिंक ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए ये होता है। और लीजिए अगर आप जिस तरह आपने बात की ना कि आप सिर्फ फ़ोन पे बात करती हैं इंस्टाग्राम पे, अगेन आई एम सॉरी आई एम जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन, आई डोंट नो माई सेल्फ, these are things where you help everyone or is this a sort of a business transaction? नहीं, मैंने डे वन से आई टुक इट एज अ प्रोफेशन। मैंने कोई इसको एज अ वेलफेयर वाला काम नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन अल्लाह मियाँ की बिकॉज तरफ से ए आ आप रही थी वही, तो फिर आप चार्ज क्यों कर रही है? अल्लाह मियाँ ने आपको गिफ्ट दिया। अल्लाह ने मुझे, आप ये बताएं ना, अल्लाह ने ये कहाँ हुक्म दिया है कि इफ somebody इज विद एबिलिटीज तो वो इसके जरिए दे कैन नॉट मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। ये कहाँ पे लिखा है? ये आपको कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा। इट्स नॉट देयर इन द कुरान, इट इज नॉट देयर इन एनी हदीस। अलबत्ता ये जरूर हुक्म है कि आप जो भी कमा रहे हैं वो जायज तरीके से हो, नाजायज ना हो। दूसरा, आपका फर्म बिलीव ये होना चाहिए कि जो कुछ भी आपके पास है वो अल्लाह ताला के हुक्म से है, अल्लाह ताला का दिया हुआ है। आपको हम्बल रहना है। आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि अल्लाह अगर ये आपको दे सकता है तो किसी मिनट आपसे ले भी सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो मदद आपकी जो लोगों के लिए है, वो ये है कि यस आप हाजिर रहें लोगों की मदद करने के लिए। you're allowed to make an income out of it। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें मुझे कुछ नहीं फील हो रहा और आप मुझसे अभी पूछें और मैं आपको सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग एन आंसर और जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी मैं आपको कहूँ हाँ मुझे तो ये भी फील हो रहा है, ये भी फील हो रहा है, दैट इज रॉन्ग। So there are a lot of times when I'm not feeling anything about another person, तो मैं उनको कह देती हूँ कि okay, let's not do it today. I'll give you another time when I feel कि okay, mentally I'm also in the right headspace. तो फिर हम आपकी रीडिंग करेंगे। I'm very clear about it. And what about, like, you know how you said you can predict future events? अब I know betting तो हराम है, लेकिन for example, would you be interested in jointly working in the stock exchange? क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें पता है, wouldn't that really help, like in terms of knowing कि यार I don't know, Miller Tractor उठा ले, PPL उठा ले, things like this, because if we know how the world is going to shake out, wouldn't that help us sort of in the hedge fund market? अच्छा, सो देखें, जहां तक प्रिडिक्शंस के जनरली हलाल हराम की बात है, ठीक है, मेरी प्रिडिक्शंस कभी भी मैंने की है ना तो वो ज्यादातर एज अ वार्निंग मैंने की है। सो हम, अच्छा मसला ये है कि हम प्रिडिक्शन का नाम दे देते हैं ना हर चीज को, बिकॉज वी हैव टू वर्ड इट, कुछ तो हमें कहना है। व्हाट आई बेसिकली सी इज अ प्रेमोनिशन। मुझे जो दिखाया जा रहा है कुदरती तौर पे मैं वो बताती हूँ। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको कहते हैं ना एक इल्हाम होना, कि अगर हो गया, या सिक्स सेंस आपकी अगर बहुत, यू आर वेरी इंट्यूटिव, तो आपने बता दिया। मैं कभी भी ये नहीं क्लेम करती कि जो मैं कह रही हूँ वो होके रहेगा। मैं कभी भी ये नहीं कहती, मैं सिर्फ ये कहती हूँ मुझे ये फील हुआ है। एंड मोस्ट ऑफ इट इज आइदर इट्स अ वार्निंग टू पीपल, और जैसे अभी पिछले दिनों ये हालात चल रहे थे, वॉर सिचुएशन चल रही थी। सो a lot of people in दुबई, बहरीन, जो क्लाइंट्स थे वो बहुत परेशान होकर मुझे मैसेजेस कर रहे थे, लीजे व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। बहुत ऑब्वियसली अंडर प्रेशर थे, सबको डर लगा हुआ था, सबके घरों में बच्चे हैं। तो मैं उससे रिलेटेड बस बता रही थी कि आप अपनी मूवमेंट्स क्या रखें, अब नेक्स्ट अटैक कहाँ होगा, क्या हो सकता है। आई वॉज जस्ट डूइंग दैट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट टू हेल्प पीपल दैट वे, नथिंग मोर टू इट, नथिंग लेस टू इट। And एंड जहां तक स्टॉक्स की बात है वो वाला काम मैं नहीं करती। मेरा मॉरल कंपस बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे बहुत इस तरह की चीजें ऑफर्स होती हैं कि अच्छा आप टेलीपैथी करके ना किसी के दिमाग में ये डाल दें, आप हमें स्टॉक्स में बता दें कि अगले स्टॉक हम किस तरह पैसा कमा लें। बहुत इस तरह की ऑफर्स आती हैं, बट आई एम वेरी स्ट्रेट अप अबाउट दीज थिंग्स। कि जो मेरा मुझे ये भी बहुत मैसेजेस आते हैं कि यार एग्जाम में क्या आने वाला है कल बता दो।
कभी बताया? ओ, नहीं, आपको never, खुद पता था जब आप एग्जाम्स दे रही थी बचपन में? नहीं, दैट्स never. अनफॉर्चुनेट. अच्छा. अनफॉर्चुनेटली पता होता तो मैं कहती हूँ मैं तो बहुत ही टॉपर होती. अच्छा, मुझे बताएं, आई डोंट नो इफ यू सॉ, देयर वाज एन आर्टिकल कुछ महीने पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में. उसमें डिस्कस हुआ था बुशरा बीबी, इमरान खान, द नेक्सस ऑफ फॉर्चून टेलिंग, जो जो उनने बताई थी इमरान खान को ना. आई डोंट नो उसमें सच क्या है सच नहीं है. उस आर्टिकल में ये भी साइट किया था कि कोई पीर साहब थे या थी, आई डोंट नो, जो बेनज़ीर भुट्टो को, जरदारी को, नवाज शरीफ को भी फॉर्चून या सॉरी फ्यूचर सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्ट करती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा. एंड दिस वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस यूज्ड इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इन द ईयर्स टू कम विद पीर्स एंड थिंग्स लाइक दैट. तो जो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि do you think that's similar to what you're doing? Do you think that Wall Street Journal, obviously that highlighted it as ke ISI was using these people to get what they wanted out of the ये आप politicians? मुझे फंसाने वाले काम कर रहे हैं. देखिए, मैं तो अपने जनरल कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ फ्रॉम समवन हु डजंट नो एनीथिंग. फंसना क्या है? मतलब आप फ्यूचर, एक सेकंड पहले आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे क्या हम फंसेंगे? अगर नहीं फंसेंगे तो आप जवाब दे दे. देखिए, इट्स अ वेरी कॉमन फैक्ट. ये तो दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो एजेंसीज हैं, दे यूज सुपर ह्यूमंस, दे यूज पीपल विद एबिलिटीज. ये तो इनके बगैर आप समझें कि गुजारा नहीं है. एक तरह जहाँ पे एक तरफ बाकी की दुनिया चल रही है, वहां पे दूसरी तरफ हीलर्स की, एनर्जी रीडर्स की, क्लेयरवॉयंट्स की, जिनको आप फॉर्चून टेलर्स कह रहे हैं, या लोग जो प्रिडिक्ट करते हैं, इनकी हमेशा से सर्विसेज ली जाती हैं. बिकॉज आई पर्सनली, एक तो what I've read up about it and what I know of is कि spiritual side तो सबका ही है ना, and everybody is concerned about what's to come. So I am very sure कि सबने इस तरह पूछा होगा लोगों से. मैं पर्सनली नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि यस, गवर्नमेंट्स जो हैं और एजेंसीज जो हैं, दे डू कम आफ्टर पीपल लाइक अस. Have they come after you? आई डोंट नो. Do you think my destiny is in my hands, Elise? Do you think that everything from now, अगर आपने for example एक चीज़ देख भी ली, am I in control of my life to a point where I can change my destiny? वो एक famous, I don't know, नेपोलियन की आपने वो स्टोरी सुनी हुई है, दो डिफरेंट फॉर्चून टेलर्स के साथ एक स्टोरी, वो पामिस हैं. वो जो हाथ काटता है अपना, द स्टोरी गोज दैट ही सीज हिज हैंड एंड ही सेज यू डोंट हैव द एम्बिशन लाइन टू बी और द फेट लाइन टू बी एन एम्परर, एंड ही टेक्स अ नाइफ out and he cuts his hand and he asks him, do you see it? Now of course this is rumored, nobody knows if Napoleon actually did that or didn't do that. And then there was the other fortune teller who told him about, like, I believe his divorce and the wars he would lose and stuff. But my question is, do you think that Napoleon story is true? Is any human beings, अलीज़े की, मेरी, तला की, किसी की भी, क्या हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है? क्या वो डेस्टिनी मेरे हाथ में है, या इज़ इट ऑलरेडी प्री रिटन? कैन आई चेंज इट? कैन आई इवॉल्व इट? कैन आई मेक दैट क्रॉस रोड्स माई ओन, और इज इट ऑलरेडी ऑन? अच्छा देखिए, ये तो अल्लाह ताला ने भी इंसान को कहा है ना कि दुआओं से आपकी तकदीर चेंज हो सकती है. ठीक है. सो आई एम अ फर्म बिलीवर, मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस मामले में, कि अगर आपका तवक्कल इतना स्ट्रॉन्ग है और आप इस बात में यकीन रखते हैं कि यार आपका ऊपर अल्लाह बैठा है और आपने जिस अल्लाह से मांगना है वो इतना बड़ा है कि उसके बाद कोई बात रह ही नहीं जाती है. सो इवन इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज प्री डेस्टिन्ड, और अगर आप फिर भी अल्लाह से मांग रहे हैं, तो अल्लाह फिर कैसे नहीं आपको दे आपकी दुआ. सो जो रीडिंग्स में भी जैसे हम देख रहे होते हैं, सॉरी अबाउट ऑल द बैकग्राउंड नॉइज, आई हैड गेस्ट्स ओवर. बट जो मैंने समझा है थ्रू रीडिंग्स ऑल्सो, जब मैं किसी की रीडिंग कर रही होती हूँ, देर आर डिफरेंट डायमेंशंस दैट आई एम लुकिंग एट. एक डायमेंशन वो है कि जिसमें कोई जिक्र कर रहा है, बहुत अस्कार पढ़ रहा है, तो उससे क्या अफेक्ट हो रहा है किसी की जिंदगी पे. एक वो है जो कि ऑलरेडी एक सेट है कि ये चीज होनी ही होनी है. देन देयर इज अनदर उसका आउटकम जो नजर आ रहा होता है कि अच्छा, कोई अगर दुआ कर रहा है सच्चे दिल से, कोई तवक्कल कर रहा है, जिसको हम कहते हैं ना कि अल्लाह से अच्छा गुमान करना. सो अल्लाह ने कहा है ना कि जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे.
सो आई थिंक ये बहुत एक इसका रिपल इफेक्ट है कि आप अच्छा गुमान कर रहे हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं? मुझे लगता है चीजें कैन ऑलवेज चेंज। जहाँ तक तवक्कुल की बात है, अगर मेरे में तवक्कुल है, आई बिलीव इन गॉड एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो उसके बाद जो एक आर्ग्यूमेंट होती है रिलीजियस लोगों की कि शिरक है किसी और चीज़ से दुआ करना या किसी और चीज़ से गाइडेंस लेना, उस पे क्या आप कहती हैं कि जो जो आदमी कहता है कि यार ये जो सारी चीज़ें हैं ये होनी नहीं चाहिए, ये फॉर्चून टेलिंग ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये सब शिरक है? देखिए, हमारे यहाँ एक जो बहुत बड़ा मसला है ना हमारी सोसाइटी का, वो ये है कि सबका एक सेलेक्टिव रिलीजन है। जो मुझे समझ आएगा कि मेरे लिए कोई चीजें ठीक हैं, मैं उसको कह दूंगी कि हाँ ये तो मजहब कहता है अलाउड है। जो चीज मेरे मतलब की नहीं होगी उसको मैं फौरन आप पे तनकीद कर दूंगी कि यार ये तुम जो कर रहे हो ना ये तो मजहब कहता ही नहीं है। सो आई पर्सनली फील कि हमारे अंदर हिपोक्रेसी बहुत है, बहुत ज्यादा। एज अ सोसाइटी हम बहुत हिपोक्रेट्स। आई होप इसके बाद मतलब मैं ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही हूँ। बट हैविंग सेड दैट, आई जस्ट पर्सनली बिलीव के मजहब हमारा इतना सख्त नहीं है। हजरत खिजर का अगर आप किस्सा देखें, उसमें क्लियरली डायमेंशंस के बारे में जिक्र है, उनकी नॉलेज के बारे में जिक्र है। उनका भी यही था कि ही वुड नो ऑफ थिंग्स। या आप अगर पहले के दौर में देखें तो बेसिकली ठीक है, बहुत सुपीरियर जाहिर है मुसलमान थे, उनसे कोई हमारा मुकाबला नहीं है, लेकिन वो इंसान थे एट द एंड ऑफ द डे। अल्लाह ताला ने उनकी मिसालें रखी शायद इसीलिए ये बताने के लिए कि इंसानों को ही ये एबिलिटीज मिली हैं। सो इस बात को डिनाई करना कि नहीं जी ये सब कुछ तो होता ही नहीं है, आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं है। अगेन सिलेक्टिव रिलीजन की बात आ जाती है कि देखें, आप अगर मैथमेटिशियन हैं, ठीक है, एंड इफ यू आर प्रोफाउंडली गिफ्टेड, तो शायद उसकी थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आ जाएगी, क्योंकि अब वो जरा कॉमन हो गया है कि भाई मैथ्स में कोई बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंडली गिफ्टेड हो सकता है। एक ऐसी चीज जो कि ज्यादातर इंसानों ने एक्सपीरियंस ही नहीं की है, जो कि बिल्कुल ऐसी है कि ज्यादा इट्स वेरी यूनिक, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लाने में शायद दौर लग जाए, एक जमाना लग जाए, क्योंकि इट्स नॉट सो कॉमन। सो एनीथिंग विच इज नॉट सो कॉमन, विच इज नॉट सो नॉर्मल एज ऑफ नाउ, उसको क्या होगा? उसको आप यही कहेंगे कि यार वी डोंट एक्सेप्ट दिस, या आप कहेंगे कि नहीं यार ऐसा कब होता है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और जहां तक शिर्क की बात है, अगेन हमारे सोसाइटी में इतनी प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो कि हलाल हराम की बड़ी क्लियर डेफिनेशन है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं करेगा, क्योंकि सबने अपने लिए अपना दीन बनाया हुआ है। मुझे अगर एक चीज सूट कर रही है तो मैं कहूंगी नहीं नहीं यार, मतलब इस्लाम तो मना नहीं करता, जबकि इस्लाम में शायद बड़ा क्लियरली उस चीज को मना किया गया होगा। शिर्क हर चीज को कह देना, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो टॉलरेंस नहीं है, वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि हम अगले के ओपिनियन को ये कहें कि अच्छा, आई हैव माई ओन ओपिनियन एंड वॉट यू हैव, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर इट। हम वो इज्जत देना ही नहीं चाहते किसी और के ओपिनियन को। हम पहले ही अपना एक वो स्टैंड आगे रख देते हैं कि यार मैंने सुनना ही नहीं है, या सुन लिया तो मैंने समझना ही नहीं है। हम कभी ये वाली मेहनत करेंगे ही नहीं कि हम कुरान शरीफ खोल के उसके ऊपर पढ़ें कि एक्चुअली कुरान कहता क्या है, या इस्लाम कहता क्या है उसके ऊपर। हम कभी भी ये नहीं करेंगे। Islam ये नहीं कहता, I mean, correct me if I'm wrong. Didn't the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam say that you're not supposed to go to soothsayers and fortune tellers, or am I wrong in my interpretation of अच्छा that? देखें, ये भी दो बड़ी डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। बहुत लोग जो हैं वो मौक्किल अपने पास रखते हैं, उनके पास जिन्नात होते हैं जिनसे वो इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, जिन्होंने चिल्ले काटे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिसेस की हैं टू इवेंचुअली गेट दिस नॉलेज। पाम रीडर्स हैं, उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है। न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने नंबर्स पढ़े हैं। अब बीच में पिसते फिर हम जैसे लोग हैं, हमने कुछ किया ही नहीं है। We didn't train into this field, we didn't do any of it. अब अगर किसी इंसान को प्रेमोनिशंस आ रहे हैं, वो जबरदस्ती तो प्रेमोनिशंस क्रिएट नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि अगर मैं कोई चीज कह रही हूँ एंड विद इन एन आवर वो चीज हो रही है पूरी, डेफिनेटली इट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर टू मी। अगर मेरे पास जन्नात नहीं है, मेरे पास मौक्किल नहीं है, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की,
मैं एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री लेके बैठी हुई हूँ, जो कि एक मुश्किल पढ़ाई थी. आई डिडंट हैव द टाइम फॉर ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस. सो ऑब्वियसली कहीं से तो एक इंफॉर्मेशन आ रही है. और अल्लाह ताला ने ये कहाँ पे, अगेन ये कहाँ लिखा है अल्लाह ताला ने कि ये चीज मतलब लोगों को मैं नहीं दूंगा. आपको पता है ये देयर इज दिस बुक, आई कांट रिकॉल द नेम, बट उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि हर जनरेशन में एक सर्टेन नंबर के लोग आएंगे जिनको कुछ एबिलिटीज मिली हुई होंगी. इट्स मेंशन्ड. शिर्क मुझे लगता है वहां पे आता है. अगेन कि अगर मैं आपको बोलूं कि जो मैं कह रही हूँ आई एम 100% श्योर वो होके रहेगा, दैट इज शिर्क. शिर्क वहां पे आ जाता है. फॉर्चून टेलिंग वो होती है कि जब मैं आपको बोलूं कि शायान मैं आपको जो बता रही हूँ एग्जैक्ट यही होगा. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स व्हेन आई एम टॉकिंग टू माई क्लाइंट. मैं उनको साफ बता देती हूँ कि लोग दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, बट प्लीज डू नॉट गेट ऑब्सेस्ड विद व्हाट आई एम सेइंग. मुझे जो भी इल्हाम है, जो कुछ भी फील हो रहा है, ठीक है उसको सुन लें. मैं गाइड आपको कर रही हूँ, मैं आपको अल्लाह का कलाम कह रही हूँ, आप जिक्र कर लें. बट एट द एंड ऑफ द डे तवक्कल, गो बैक टू योर नमाज, गो बैक टू योर तवक्कल एंड हैव दिस फेथ कि भाई जो ठीक करना है वो अल्लाह ताला ने करना है. अलीजा इज अ नोबडी, एनी अदर पर्सन हु इज रीडिंग यू इज अ नोबडी. हम सिर्फ एक गाइड के तौर पे आपके लिए बैठे हुए हैं. आखिर में आपने घूम फिर के जाना अल्लाह की मदद लेने ही है. How many people reach out to you, Elise, and ask you अगर उन पे काला जादू या उन पे नजर लगी हुई है? Because this is a very standard answer to a lot of problems in Pakistan. अच्छा, एक तो आई डोंट डील इनटू ब्लैक मैजिक. So, आई डोंट. no, as in आई like, डोंट डील. what do you mean you don't deal? Like someone comes to you says कि मेरे पे क्या काला जादू है या नहीं, you say I don't deal with that. आई क्लियरली टेल देम कि मैं इसमें डील ही नहीं करती हूँ. ठीक है, आई ठीक है, डोंट. okay, okay, ठीक है. ठीक है. दूसरा ये कि मुझे कुछ दिख भी जाए इस तरह का तब भी मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि देखें एज मुस्लिम्स ना हमें हुक्म ये है कि आपके पास अगर कोई इंसान मदद के लिए आ रहा है या वैसे भी आ रहा है, आपने उसको परेशान करके नहीं भेजना है. कोई आपकी मदद लेने इसीलिए आ रहा है कि आपने उसको वापस अल्लाह की तरफ रुजू करना है, आपने उनको हेल्प आउट करना है in a positive manner. Somebody is coming to you so that they can feel better, not so that you can add up to their problems. क्योंकि अगर आपने बता भी दिया कि किसी पे जादू है, वो क्या कर लेगा अपने लिए? कुछ भी नहीं कर सकता. वो और उल्टा परेशान, पैरानोया होगा बंदे को, एंड they'd be like, you know, चलो स्ट्रेस बढ़ गया. सो एक तो आई डोंट डील इन दैट. दूसरा मैं ये पूछ रहा था कि जब कोई कहता है कि उन पे नजर लगी है या फॉर एग्जांपल ऐसी चीज है, तो आपने तो कह दिया ना यू डोंट रियली डील विद दिस, राइट? बट डू यू आल्सो फील लाइक, क्योंकि पाकिस्तान में लॉट ऑफ पीपल फील, in my opinion, कि उनको नजर लग, as in they're not looking at maybe the effort they can put in, and a lot of it they're putting on external factors, right? And that sort of is our culture in Pakistan and India कि हम दुआएं भी मांग लेंगे लेकिन मेहनत क्या, वो जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी था, टायरिंग योर कैमल फर्स्ट, कि सिर्फ उम्मीद पे ना छोड़ो. So my sort of understanding that I wanted to ask is, what kind of problems do people come to you with more often than not? अच्छा, सो यस, ये मैं भी एक टाइम पे, आई बी ऑनेस्ट, मैं बड़ा चिढ़ती थी क्योंकि हमारी ज्यादातर आवाम जो है ना, उसको मुझे लगता है वो छींक भी आए ना तो वो कहते हैं हमें काला जादू हुआ है हम पे. सो हमारी आवाम जो है ना, इट इज ऑब्सेस्ड विद ब्लैक मैजिक एंड नजर. नजर बरहक है, कोई शक नहीं है. जादू का भी जिक्र है हमारे मजहब में. लेकिन हमारे यहाँ लोग ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने हमें कहीं ये वादा करके नहीं भेजा दैट आवर लाइफ इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम फ्री. ये दुनिया हमें एक टेस्ट के तौर पे मिली थी इंसानों को. सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ टेस्ट. सो ये वाली बात सोचना कि अच्छा हर चीज ही काला जादू है, नहीं. अल्लाह ने आपके लिए, आपके मुकद्दर में जो तकलीफें आजमाइशें लिखी हैं वो आपको मिलके रहेंगी. सो पहली चीज तो ये. दूसरा, हैविंग सेड दैट, मेरे पास जो आते हैं लोग, यूजली दे कम विद करियर इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज. Yeah, majority of it is this. Like in relationship issues, is it like सास आके पूछ रही है कि ये मेरे लिए अच्छी बहू होगी, that kind of conversation? What's the kind of like gist? No, there are a lot of women who are going through domestic violence. So they want to understand how to navigate their life through these issues. ज्यादातर औरतें अपने मसले ये वाले लेकर आती हैं. There are communication issues between couples. People come with that. Health concerns होते हैं लोगों को समझ नहीं आ रही होती.
कि अगर डायग्नोज नहीं कर पा रहे होते हैं डॉक्टर्स कि क्या इशू है. So I'm able to tell them कि क्या health issue है, and once they go back and get those tests done, so usually outcome ज्यादातर वही निकलता है जो मैंने बताया होता है. करियर को लेके मसले होते हैं, जॉब्स नहीं है या जॉब स्विच करनी है, how to go about it. So all of these things. And do you sort of act like a therapist as well? Do you give them your opinion कि अगर खुदा ना खास्ता कोई domestic abuse हो रही है, do you tell them go get a divorce, or is it not like that? You just tell them what you see and that's it. I do. Are you like their मुझे अगर friend? लग रहा होता है कि I'm sorry, what? Is it like a therapy जिस तरह होती है, friendship जिस तरह होती है? Is it like that, like, or is it just like you tell them कि I saw this, that's it, no more information? So मैं अपने मुंह से कैसे बोलूं कि I act as a friend? But चले मैं तो नहीं, I'm just trying to understand the process. ये तो मैं अपनी मार्केटिंग करूंगी ना फिर. ठीक है. But I don't know. I mean, people they feel comfortable talking to me. I believe that's what I've heard, and that's what you'll get from the testimonials that are on my page. Which is why I have a lot of recurring clients. आपने मुझसे पूछा था कि कितने clients हैं मेरे. Within a span of almost a year and a half, I've got 19,000 organic following. So I've got clients जो कि पाकिस्तान से भी हैं, internationally भी हैं. So I've got clients from all over the world. And do you, so for example, like in your own life, when you talk to these people and you see these things, does it, you know how a therapist, for example, can only take on so much? जितना मुझे पता है थेरेपी के बारे में, I think आप दिन में 3 या 4 घंटे से ज़्यादा कर नहीं सकते because it's too much on your body. Obviously, it's tough listening to a lot of people's problems. Yeah. Obviously कोई अगर आपके पास आ रहा है तो 9 out of 10 times वो तो ये तो नहीं आके कह रहा होगा ना, कोई खुशी का मौका तो नहीं होगा, अगर उनके कोई मसले मसाइल ही होंगे. Do you sort of limit the amount of time you do this because it might have a effect on you and your sort of mental state? It definitely affects not just my mental health but my physical health as well, because basically तो देखे ना आप, एक energetic field है दूसरे इंसान की. Basically you're entering that, and which is why you're able to read their energy. अब उनकी जितनी negative है वो भी आप ले रहे हैं, जितनी positive है वो भी आपको नजर आ रही है. So definitely taxing होता है. Mentally कभी कभी इसलिए भी taxing होता है कि देखें आखिर में इंसान है हम भी, हमारे अपने भी ना कभी कभी बात करने से ट्रिगर्स ऊपर आ रहे होते हैं. So it's like your own life is going on and then you're also dealing with the client. So ये चीज होती है. I do try to limit it to a certain number in a day. बट फिर ये कि मैं बीच में ऑफ लेती हूँ, मतलब मैं कुछ दिन काम करती हूँ फिर मैं कुछ दिन ऑफ लेती हूँ ताकि आई कैन go back to being completely normal so that I can go back to working completely normal. And आपकी फैमिली को जब पता चला like that you have these, जैसे आपने बात बताया कि अपने अब्बू और अम्मी को, अपनी अम्मी को बताया, अब्बू अंदर आए, उन्हें ब्लास्ट के बारे में बताया, how does it sort of, I mean, where do they go from कि our daughter, like, because I'm sure they're worried, right? Like, this is not a normal thing. तो क्या उनको कभी टेंशन थी? Did they take you to some sort of like somewhere like psychiatry or something? Just because how do you, if it happened, I have children, right? If it happened to my kids, I would first want to figure out कि हो क्या रहा है, and then how do you understand, or how do they come to a level where they accept कि this is supernatural? अच्छा, so initially तो जब ये चीज हुई थी तो माय मदर वुड टेल मी कि बेटा कुछ नहीं है, आयतल कुर्सी पढ़ लो. हमारी फैमिली में सिक्स सेंस तेज है सबकी. तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है. फिर जब जरा ज्यादा लगा कि नहीं अब बढ़ रही हैं ये एबिलिटीज, तो माय मदर डिड गेट वेरी कंसर्न एंड शी स्टार्टेड टेलिंग माय फादर एंड माय अदर फैमिली मेंबर्स के इसको तो कोई मसला हो गया है इसके साथ, तो शी इज नॉट ओके. And there was obviously a lot of discussion pertaining to के क्या करना चाहिए, whether she needs therapy or whether she needs to be taken to somebody pious or what. But alhamdulillah, otherwise my family is very liberal and they're very open-minded to understanding overall concepts of what the science has to say about this and what the general culture says about it. So शुक्र है क्योंकि वेस्ट का तो पता ही है कि वेस्ट में तो ये सब बहुत प्रैक्टिस होता है. So my dad was very much aware of it. And वो बस ये होता है कि आपको एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती ना कि आपके अपने घर में कोई ऐसा निकल आया है.
So I think, sorry about all this No problem. noise. Do you have siblings? I have my cousins who have come over from abroad, and वो पूरे आज घर में सब जमा हुए थे. I was hoping they would leave early, but they didn't. So And generally in life, आपके कोई बहन भाई हैं? no, No. I am the only child. मैं पूछने वाला था कि if they had also these sort of abilities, that would have been interesting. Do you think what did your dad do? Like when you like what was his career? My dad's career. अच्छा, एक और चीज, I'm very, very, very personal about overall Sharing. my personal life. अच्छा, Yeah, because you would understand why. All sorts of people come after us. fair enough. So, Fair enough. But isn't that unfair? अगर आप मेरी पूरी जिंदगी रीड कर सकती हैं और आप मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बता रही, तो ये तो जुल्म है मेरे साथ, तो नहीं? मतलब in a way. मतलब देखिए मेरा काम ये है कि मेरा काम है लोगों के काम आना. मैं द रीजन व्हाई आई बिकेम अ पब्लिक फिगर, तो देखिए लोगों ने बना दिया ना, बिकॉज काम ऐसा है कि इट्स वेरी अनकन्वेंशनल, इट्स वेरी डिफरेंट, तो ऑब्वियसली पीपल आर वेरी इंट्रीग्ड. पार्ट ऑफ द रीजन कि मुझे इतना पर्सनल रखनी पड़ती है अपनी लाइफ इज बिकॉज ए सिक्योरिटी रीजंस. बहुत लोग अप्रोच करते हैं, लाइक आई सेड, एक सर्टन स्केल पे दे डू वांट कि उनके साथ काम किया जाए, विच आई डोंट पर्सनली वांट टू डू, क्योंकि फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इवेंचुअली. we've seen that in the public sphere. Yes. Continue. या सेकेंडली, देखिए वही बात है कि जनरली जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो पीपल आर वेरी इंट्रीग्ड अबाउट यू एंड देन दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू. कितनी बार ये हुआ है कि मैंने किसी क्लाइंट से बात की एंड बाय द एंड ऑफ इट उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा मुझे ना न्यूमरोलॉजी आती है, मैंने आपके नाम के ना नंबर्स निकाल लिए और मुझे उससे ये पता चला कि आपके ना लाइफ में ये होगा, ये होगा, ये होगा. एंड मेरा अपना मॉरल कंपस इज वेरी स्ट्रांग. मेरे पास इवन क्लाइंट्स को चल के भी आ रहे होते हैं तब भी मैं उनकी परमिशन लेती हूँ काफी चीजों में, कि अगर मुझे आपकी परमिशन है तो मैं आपकी ये चीज रीड कर लूं, मैं आपको बता दूं, डू यू वांट टू नो. सो आई लेट देम गिव मी द परमिशन टू टैप इनटू व्हाटएवर दे वांट मी टू टैप इनटू. यहाँ पे लोगों की वो सीन नहीं है. यहाँ पे लोग रैंडम मतलब शुरू हो जाते हैं कि हमें आपके बारे में ये फील हुआ, हमें ये पता चला. Personal space. So generally also like I'm a very private person. So I mean I just want people to know me for my work Acha, and not for anything else. Yeah. that makes sense. Acha, Alize, I'm going to ask you some predictions just to come back to this in a few years and see how much of this came true. Okay? No pressure, but pressure. अच्छा जी, पाकिस्तान अगले 5 साल में एक वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं जीतेगा? नहीं. Yeah, I could predict that too, though. मतलब आपने टीम देखी है बार, ये तो कोई 7 साल था, फुल टॉस दिया आपको शुरू में. अच्छा, will Pakistan and India go to war again in the next 5 years? Yes. Will Imran Khan ever become prime minister again? As of now, I don't think so. Will World War III happen in the next decade? Not in the next decade. No. Will Pakistan ever rise as an economy? Yes. Will it rise in the next 10 years? Not rise per se, but it'll eventually, get to that process कि जहाँ पे बेहतरी आना शुरू हो जाए. What should I invest? मजाक कर रहा हूँ. Thank you very much. This has been a lot of fun. Thank you for being a good sport and thank you for taking out the time. Thank you. I thoroughly enjoyed. आप कह रहे थे आपको सवाल नहीं पता. Your questions were amazing. I had a good time. Thank you. And once again, I'm very apologetic about all the background Not noise. an issue. Not an issue. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.